Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. In this video, I will be continuing with the physics revision series that we have already started, and it is going on with full momentum, full josh. We have done 7 lectures, 7 sessions before this. This is the 8th session. And I hope you people are enjoying it. You're making the best use out of it. Okay. And I'm very, very sure that this will boost your confidence to the maximum and it will help you perform in the boards in an excellent manner. All right. So make sure that you don't miss out any of the sessions. For this, you need to definitely press the bell icon, which is next to the subscribe button. All right. Now, in this lecture, in this video, we will be continuing with the chapter machines. We have already started with machines. I hope you have watched the previous lectures of machines, lecture number 6 and 7, in which I have discussed about mechanical advantage, velocity ratio, efficiency, ideal machine, actual machine, and power input, power output, work output, load, effort. That means the very important terms which are required to understand the chapter further have been already discussed in lecture number 6 and lecture number 7. So you must have definitely watched them before proceeding with this lecture. Here we will be discussing about pulleys. So we will be basically starting with the topic pulleys today. So what is a single fixed pulley and what's a single movable pulley? We will be discussing these two things and the questions which come from these topics, the possible questions which can come from these topics. Let us start today's session. Now, the first question that we will be doing today is from something that we have done in lecture 6 and lecture 7. And then we will start with pulleys. So 2 questions before we start with pulleys. 2 very important questions. All right. This is an MCQ question. Please write it down. For an ideal machine, which of the following relations is true? Write it down. This is a very conceptual MCQ that we are doing. Here we will be doing 2 MCQs and 1 question, which is a subjective question, small but a very important subjective question. And then we will start with pulleys. Okay, for an ideal machine, which of the following relations is true? MA is greater than velocity ratio. MA is less than velocity ratio. MA is equal to velocity ratio. And number 4, MA is equal to velocity ratio upon 2. So basically, we have 4 equations being given, and we have to choose which of the equations is correct, which is the correct relationship. Okay. How will you solve it? Now, try to recall. Those of you who have watched the previous lectures sincerely and have also maintained the record, the notes, you're making notes, I hope, right? Because I have told you to take down the notes of everything that I'm writing in the class. Now, you must have studied in the previous lectures the formula for efficiency. Efficiency is what? MA upon VR. This is what I have taught you. Efficiency of a machine is MA upon VR. In other words, you can also say that MA is equal to VR into efficiency. This is the same formula, basically. MA is equal to velocity ratio into efficiency. Not a new formula. You have seen it in lecture number 6 as well. Isn't it? Lecture 6 में हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया था, समझा था कैसे इसका डेरिवेशन आया. लेक्चर 6, lecture 7 देखकर ही lecture 8 को प्रोसीड करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ. अच्छा, अभी बोल रहा है फॉर एन आइडियल मशीन. तो लेक्चर नंबर 6 में हमने ये डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला को. और लेक्चर नंबर 7 में, मतलब जस्ट द प्रीवियस लेक्चर टू दिस, क्या डिस्कस किया था कि आइडियल मशीन में क्या होता है? एफिशिएंसी 100% होता है, यानी 1 होता है. तो आइडियल मशीन का बात किया जा रहा है. आइडियल मशीन में तो ये इक्वेशन अगर हम आइडियल मशीन के लिए लिखें तो एफिशिएंसी के जगह पर मैं 1 लिख दूंगा, यानी MA is equal to VR in case of a
आइडियल मशीन। आइडियल मशीन में एफिशिएंसी 1 होता है, तो एफिशिएंसी के प्लेस पे 1 लिख दिया, तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू 1, मतलब एम ए इज इक्वल टू वी आर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में भी, डिफरेंट स्कूल्स में कई बार पूछे जाता है। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजन, सिर्फ आंसर लिख के छोड़ मत दो, क्या लॉजिक लगाया हमने वो भी लिख लो, ताकि जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए क्लियर हो जाए। देखो, एम ए इज इक्वल टू, फॉर क्या लॉजिक है, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, एम इज वी आर इंटू एफिशिएंसी, और हम यहां पर वी आर एफिशिएंसी की जगह 1 पुट कर देंगे, सिंस efficiency is equal to 1 for an ideal machine, for an ideal machine। अगर actual machine होता तो क्या होता, वो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा आ गया एम ए इज इक्वल टू वी आर। अब हम बात करते हैं नंबर 2 में। क्वेश्चन है, फॉर एन एक्चुअल मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, एम ए ग्रेटर देन वी आर, एम ए लेस देन वी आर, एम ए इक्वल टू वी आर, एंड एम ए इज ट्वाइस ऑफ वी आर। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्या लॉजिक लगाएंगे चिल्ड्रेन? स्टार्ट करेंगे उसी फॉर्मूले से, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। याद करो कि एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, एफिशिएंसी की वैल्यू एक्चुअल मशीन में हमेशा 100% से कम होता है। एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल मशीन्स आर ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन 100%। हो सकता है 50% एफिशिएंट मशीन हो, 60% एफिशिएंट मशीन हो, कभी भी 100% नहीं हो सकता, दैट मींस लेस देन 100% है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लेस देन 1 होता है, 100% मतलब 1। तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम होगा मतलब हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.6 हो सकता है 0.7 हो, 0.8 हो सकता है 0.9 हो, लेकिन 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। हो सकता है 0.4 हो, कोई भी वैल्यू हो लेकिन 1 से कम हो। ठीक है, 1 से कम हो, तो यहां पर मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता हुआ वैल्यू, 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। किस मशीन के लिए? एक्चुअल मशीन के लिए। एक्चुअल मशीन में एफिशिएंसी 0 से ज्यादा, 1 से कम, लेकिन आइडियल मशीन में एफिशिएंसी 1 होता है, 100% होता है। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, मैथ्स है, अगर वी आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी से, और एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम हो, जैसे मान लेते हैं 0.4 हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू 0.4, यानी 4/10, यानी 2 to the 4, 2 5s are 10, 2/5 ऑफ वी आर, कुछ ऐसा होगा। एम ए इज 2/5 ऑफ वी आर, यानी एम ए छोटा है वी आर से, वी आर का 2/5। अगर एफिशिएंसी का वैल्यू 0.4 ना होके 0.5 हो, वो भी हो सकता है, क्योंकि 0.5 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, एम ए इज इक्वल टू 0.5 मतलब हाफ, एम ए इज वी आर का आधा, वेलोसिटी रेशियो का आधा है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो का हाफ, वेलोसिटी रेशियो को हाफ कर दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज मिला। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन वेलोसिटी रेशियो। कोई भी वैल्यू ले लो जो 0 से ज्यादा हो, 1 से कम हो, उसको जब हम वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, मीनिंग यह निकलता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो यहां पर हम, लॉजिक समझ में आया, कॉमन सेंस लगा के इसको करना है, ये चीज को दिमाग में सेट कर लो। आइडियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो। ये पॉइंट नोट डाउन करो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता फॉर अ मशीन, फॉर अ मशीन to have its mechanical advantage greater than velocity ratio. This is impossible. ma is equal to vr is also impossible, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल, क्योंकि ये आइडियल मशीन में होता है। लेकिन आइडियल मशीन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियली तो पॉसिबल है। तो आइडियल मशीन में एम ए इज इक्वल टू वी आर, लेकिन ये जो इक्वेशन है एम ए ग्रेटर देन वी आर, ये तो थियोरिटिकली भी पॉसिबल नहीं है।
और प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, एम ए इज लेस देन वी आर, ये एक्चुअल मशीन में होता है। अभी अभी हमने यही चीज सीखा। अब जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 एमसीक्यूज हमने कर लिया और एक क्वेश्चन हमें करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पुलीज, सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुलीज। क्वेश्चन है कि एक्चुअल मशीन की एफिशिएंसी 100% से कम हमेशा क्यों होता है? क्यों किसी भी मशीन जो प्रैक्टिकल मशीन है, एक्चुअल मशीन है, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होता है? क्यों नहीं होता है, कहां लॉस हो जाता है? तो ये मैंने तो उस टाइम एक्सप्लेन करते हुए बताया ही था कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है मशीन को, उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होता है। इसके साथ साथ हीट हो जाता है मशीन, वहां लॉस होता है। तो चलो उसको एक क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, क्योंकि ये कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। द एफिशिएंसी why is the efficiency of an actual machine को रियल मशीन या फिर प्रैक्टिकल मशीन भी बोलते हैं, is always less than 100% या फिर less than 1? क्यों less than 1 या 100% होता है? the efficiency, आंसर लिखो फटाफट, the efficiency of an actual machine is always less than 100% or less than 1 because there is some loss of energy during its operation। लेकिन कहां लॉस हुआ वो लिखना पड़ेगा, during its operation due to the following reasons। देखो रीजन नहीं लिखोगे कहां लॉस हुआ तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना लिख दोगे कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है इसलिए इसलिए 100% से कम होता है, काफी नहीं है बच्चा, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन है, द मूविंग पार्ट्स इन अ मशीन हैव फ्रिक्शन, सो एनर्जी इज लॉस्ट, या सम एनर्जी लिखो, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है। और एक पॉइंट लिखो और एक रीजन लिखो, क्या? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन आर नॉट परफेक्टली रिजिड। परफेक्टली रिजिड, देखो एकदम हार्ड परफेक्टली रिजिड कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कंप्रेस वो होता ही है। तुम बोलोगे सर लोहा का एकदम मशीन, आयरन, वो कैसे कंप्रेसिबल है? 100% रिजिड नहीं है, कंप्रेस, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो उस नेग्लिजिबल कंप्रेशन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि बॉडी को कंप्रेस करने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी मशीन का पार्ट परफेक्टली हार्ड एंड रिजिड नहीं होता है, थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता ही है, चाहे वो आयरन ही क्यों ना हो। और उसी आयरन को, उसी मशीन के पार्ट को कंप्रेस करने में एनर्जी का लॉस होता है, जो कि वेस्टेज हो गया। तो ऑल ऑफ दीज रीजंस मेक अ मशीन, मेक द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन ऑलवेज लेस देन 100%। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पुली। पुली में जो हम देखने वाले हैं वो क्या, सबसे पहले सिंगल फिक्स्ड पुली। पुली तो वैसे सब जानते हैं दिखता कैसे, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मशीन। हम कुएं से पानी उठाते हैं, ऐसे खींचते हैं, बकेट उठता है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली पुली बड़ा इजी है। एंड इंपॉर्टेंट कुछ बातें इसके साथ रिलेटेड बातें हैं जिनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, एंड आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है, या फिर ये नाइदर ऑफ द टू है, तो फिर इसे यूज क्यों करते हैं। तो मैं अभी सारे चीजों को यहाँ डिस्कस करूंगा, सिंगल फिक्स्ड पुली से रिलेटेड और उसके बाद सिंगल मूवेबल पुली से भी रिलेटेड। सिंगल फिक्स्ड पुली को फटाफट बनाते हैं। एक रिजिड सपोर्ट बना लिया,
एक हुक बना लिया, तुम्हें ये आना चाहिए बनाना, पेंसिल से बनाना, अच्छे से बनाना। फिर एक हमने एक फ्रेम बनाया जहां पर हम एक होल यहाँ पे एक्सेल को बनाएंगे। इस एक्सेल के थ्रू ये व्हील रोटेट करेगा और हमारा पुली बन गया है, हमारा पुली बन गया। दिस इज द पुली व्हील। ओके, अब हम स्ट्रिंग बनाते हैं। वो स्ट्रिंग जो पुली के ग्रूव से पास किया है, सिंपल, ठीक है। एक साइड हम भारी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं, इसके वेट को हम कहेंगे लोड, एंड वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, इसीलिए लोड का डायरेक्शन हम डाउनवर्ड शो करेंगे। कुछ बच्चे ना लोड अपवर्ड शो कर देते हैं, ऐसा ऊपर की तरफ एरो दिखा देते हैं कि सर लोड तो खींचेंगे तो लोड ये तो ऊपर उठेगा ना, तो इसीलिए ऊपर की तरफ एरो कर देते हैं। ये गलत है। हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा उसको मार्क नहीं कर रहे हैं। दिस डायरेक्शन इज टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि लोड यानी वेट ऑफ अ बॉडी का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है क्योंकि अर्थ इसे नीचे की तरफ खींचना चाह रही है। तो लोड का डायरेक्शन कभी भी ऊपर मत शो करना, ये एक मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं ऊपर। यहाँ एफर्ट भी हम नीचे लगाएंगे। अब इस सिचुएशन में इमेजिन करो कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है। इस सिचुएशन में क्या होता है, सिर्फ अगर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करें जो कि सिर्फ इस बॉक्स के अंदर है, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर है, इस देखो मैंने रादर दूसरे कलर से यूज कर देता हूं, रेड बॉक्स के अंदर के पार्ट को सिर्फ देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग है और एक वेट है जो कि नीचे जाना चाहता है क्योंकि इसका लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इसका मतलब एक फोर्स है जो ऊपर के तरफ तरफ लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज बैलेंसिंग द लोड, एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन। तो तुम टेंशन मतलब, टेंशन बहुत ही सिंपल सा एक फोर्स है जो कि ये स्ट्रिंग में लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन इस लोड को बैलेंस कर रहा है। लोड नीचे जाना चाहता है, जाने नहीं दे रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है सो दैट दिस वेट इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम इस पार्ट को अगर देखें, इस रेड बॉक्स के अंदर, अभी जो मैंने रेड बॉक्स बनाया उसके अंदर क्या देखो कि एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एफर्ट। हालांकि ये स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, नीचे जा नहीं रहा है, तो जरूर यहां पर भी एक टेंशन है और पूरे स्ट्रिंग में एक ही टेंशन का वैल्यू एक्ट करता है। तो ये तो एक ही सिंगल स्ट्रिंग है ना, तो इधर जो भी टेंशन होगा उतना ही टेंशन इधर एक्ट हो रहा है। आई होप तुम्हें टेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली की बात कर रहे हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली की बात कर रहे हैं। जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो आइडियल केस की बात कर रहे हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि यहां पर ये जो स्ट्रिंग हमने यूज किया है ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये पुली फ्रिक्शनलेस पुली है, तब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और उसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। आइडियल मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम थियोरेटिकली पढ़ने के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली। अगर प्रैक्टिकली ऐसा कोई पुली बनाएंगे तो यहां डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, एंड यहां पर ये जो स्ट्रिंग वो मासलेस नहीं होगा, ओके, एंड वो 100% रिजिड स्ट्रिंग भी हमें नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर आइडियल केस की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम मान लिया, हमने क्या माना कि ये पुली एफिशिएंसी इसकी 100% है। तब हम बोल रहे हैं कि इस लोड को बैलेंस किया ये टेंशन, इस एफर्ट को भी बैलेंस किया ये टेंशन। अब हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, लोड को किसने बैलेंस किया? टेंशन ने, इसलिए L इज इक्वल टू टी। एफर्ट को किसने बैलेंस किया? वो भी टेंशन ने, E इज टी। दोनों अगर टी के इक्वल है तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। लोड के जगह भी टी, एफर्ट के जगह भी टी, टी टी कट के मैकेनिकल एडवांटेज आ गया इस मशीन का 1। अच्छा, ये हम आइडियल केस की बात कर, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो प्रैक्टिकल केस में जो होता है ना, उस प्रैक्टिकल केस में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू लेस देन 1 होता है। याद रखना, याद रखना, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होगा अगर वो एक्चुअल मशीन है तो, प्रैक्टिकल मशीन है तो, ओके, क्योंकि लोड हमेशा कम होगा, एफर्ट मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऑलराइट, क्योंकि फ्रिक्शन को भी तो ओवरकम करना है, उसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट अगर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर कम होगा, तो एफिशिएंट, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगा, ठीक है। लेकिन हम आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं तो जितना लोड उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा,
दोनों सेम है, कट गया, मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी रेशियो का क्या वैल्यू होगा, तुम ना तुरंत बोल दोगे मुझे, फटाक से। क्यों बोल दोगे? सर अभी अभी आपने पढ़ाया था ना, अभी अभी हमने समझा सर कि अगर आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होता है सर। फटाक से बोल दिया। तो आइडियल मशीन की हम बात करें तो वेलोसिटी रेशियो भी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज होगा, यानी 1 होगा, 1 होगा। तो यहां पर 1 है। एक्चुअली वेलोसिटी रेशियो होता क्या है? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला से हम इस वेलोसिटी रेशियो को हम बता सकते हैं कि ये 1 है। अब देखो, वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बेसिकली ये फॉर्मूला से 1 आएगा, 1, इस फॉर्मूला से भी 1 आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट का मतलब है कि ये पॉइंट से जब तुमने इसको नीचे खींचा, यहां पर स्ट्रिंग को लाया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू हैव पुल्ड द एफर्ट आर्म। खींचेंगे ना तभी ना ये ऊपर जाएगा, इसको, इस स्ट्रिंग को खींचेंगे तभी तो ये लोड ऊपर जाएगा। तो जब हमने इसे नीचे खींचा तो मान लेते हैं कि हमने इसे 2 सेंटीमीटर नीचे खींच दिया। तो ये लोड, ये जो लोड है ये कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा? ये तो कुछ देर बाद जैसे मैंने खींचा ये ऊपर चला गया बॉक्स, तो ये कितना सेंटीमीटर ऊपर गया? देखा गया कि ये भी 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा। जितना हमने लोड को डिस्प्लेस किया उतना ही, जितना हमने एफर्ट को डिस्प्लेस किया उतना ही लोड डिस्प्लेस हुआ। अगर एफर्ट x सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ तो लोड भी ऊपर की तरफ x सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, यानी दोनों सेम हुआ तो 1 आया। तो वेलोसिटी रेशियो 1 आया। तो वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू आ गया 1। लेकिन क्या सिर्फ ये आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली में ही वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 1 आएगा? क्या ये अगर प्रैक्टिकल यानी एक्चुअल सिंगल फिक्स्ड पुली हम ले लेंगे तो क्या वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू कुछ और आएगा? नहीं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुनो, आर यू लिसनिंग? वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू सिंगल फिक्स्ड पुली में हमेशा 1 आएगा, चाहे हम आइडियल मशीन की बात करें, आइडियल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करें, या एक्चुअल सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करें। यानी अगर हमने एक एक्चुअल सिंगल फिक्स्ड पुली लिया जो कि आइडियल नहीं है, जिसमें फ्रिक्शन है, जिसमें स्ट्रिंग का मास है, ठीक है, एकदम डेली, एकदम रियल लाइफ का एक इस तरह का पुली लिया, उसमें भी मैं क्या देखूंगा कि जितना मैं एफर्ट आर्म को डिस्प्लेस करूंगा नीचे उतना ही लोड आर्म ऊपर उठेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड विल बी सेम, सेम टर्म्स है तो दोनों, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1 ही आएगा। तो चाहे मशीन आइडियल हो तो भी, कौन सी मशीन, सारे मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल फिक्स्ड पुली की बात कर रहा हूं। सिंगल मूवेबल पुली में अलग होगा, सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करो, चाहे हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली आइडियल हो तो भी वेलोसिटी रेशियो 1, चाहे हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली एक्चुअल वाला हो, रियल वाला, प्रैक्टिकल हो, तो भी वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 1। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जो हमने 1 लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस के लिए लिखा। प्रैक्टिकल केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा एक्चुअल केस में। और क्यों लेस देन 1 होगा वो समझ गया, समझ लिया तुमने? एक बार तुरंत मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्यों ये वैल्यूज मैकेनिकल एडवांटेज में आइडियल में 1 होता है एंड एक्चुअल में लेस देन 1 होता है, एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों केसेस में ही सिंगल फिक्स्ड पुली का 1 क्यों होता है। क्विकली देखो, क्विकली देखो, अगर हम आइडियल मशीन की बात करें थियोरेटिकली, जिसकी एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब जितना ये लोड है उस लोड को उठाने के लिए, अगर ये 10 न्यूटन का लोड है तो मुझे 10 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए 10 न्यूटन का एफर्ट देना पड़ेगा। यानी लोड और एफर्ट दोनों सेम है। अगर 10 न्यूटन का लोड है तो भारी है वेट, उसको उठाना है तो मिनिमम मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन। ओके, तो लोड और एफर्ट अगर दोनों सेम है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था, अब नहीं देखे हो तो देख लो भाई, नहीं तो ये फॉर्मूला कहां से आ गया सर। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड एंड एफर्ट आर सेम, अगर सेम है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये कौन से मशीन की बात कर रहा हूं? आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली की बात कर रहा हूं, ठीक है।
ये जितना लोड है उतना ही एफर्ट तुम्हें मिनिमम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल मशीन है, एक्चुअल मशीन है, तो तुम्हें अगर ये लोड 10 न्यूटन है तो इसको उठाने के लिए हो सकता है 15 न्यूटन लगाना पड़े। क्यों, कहां से ये एक्स्ट्रा 5 न्यूटन आ गया सर? 10 न्यूटन को उठाने के लिए 15 क्यों, ये एक्स्ट्रा 5 न्यूटन क्यों लगाना पड़ेगा? अरे यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है ना इस ग्रूव में, ये ग्रूव के अक्रॉस जो स्ट्रिंग पास किया है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 5 न्यूटन हो, उसको भी तो ओवरकम करना है। तो यानी एफर्ट जो तुम लगा रहे हो, अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो वहां फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यानी एफर्ट विल ऑलवेज बी मोर देन लोड, यानी एफर्ट विल ऑलवेज बी मोर देन लोड, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी मोर देन द न्यूमरेटर। तो कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। सिंपल मैथ्स है। तो इसीलिए ये चीज दिमाग में सेट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। आइडियल सिंगल, ये सिर्फ सिंगल फिक्स पुली की मैं बात कर रहा हूं, मूवेबल वाले नहीं। आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, एक्चुअल सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है। आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली में वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, और एक्चुअल सिंगल फिक्स्ड पुली में भी वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 1 होता है। नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। अब बात आता है, इज, लिखो क्वेश्चन, इज अ सिंगल फिक्स्ड पुली अच्छा, एक से एमसीक्यू की तरह लिखते हैं। लेट अस डू अ फ्यू एमसीक्यूज। चलो 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 चलो, क्वेश्चन का फॉर्मेट को चेंज करते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। बड़ा मजेदार तुम्हारे इस बार एमसीक्यूज हैं, जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 में काफी सारे एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज करो, मजा आएगा। लिखेंगे अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड एज नंबर 1 अ फोर्स multiplier, number 2 a speed multiplier, number 3 a device to या फिर a machine to change the direction of effort to a convenient direction. And the last option is both 1 and 2. चलो सोचते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें लेक्चर नंबर 6 में जो भी मैंने बताया था ना, लेक्चर नंबर 6 में, कि फोर्स मल्टीप्लायर कब होता है, जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर कब होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या होता है उस टाइम, इन सभी चीजों को तुम्हें आना चाहिए लेक्चर 6 में जो मैंने बताया था। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेक्चर 6 देखे हो डेफिनेटली, अगर देखे हो तो नोट्स बनाए होगे, नोट्स में लिखा होगा तुमने, क्या लिखा होगा मैं फिर से लिख देता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तभी वो फोर्स मल्टीप्लायर है। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तभी वो फोर्स मल्टीप्लायर है। तो फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू या तो देख लो, ग्रेटर देन 1 हो तो तुरंत बोल दो कि फोर्स मल्टीप्लायर है, या फिर वेलोसिटी वैल्यू का वैल्यू देख लो, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू, वो भी अगर ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर लेस देन 1 है मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू तो स्पीड मल्टीप्लायर है। कोई भी मशीन, दिस इज नॉट फॉर अ पुली ओनली, इट इज फॉर एनी मशीन, लीवर हो, पुली हो, कोई भी पुली हो, उन सब के लिए ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर है।
तो तुमने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा तभी फोर्स मल्टीप्लायर होगा। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या फोर्स मल्टीप्लायर है? क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है? अभी देखते हैं, नहीं। आइडियल केस में तो इक्वल टू वन है और एक्चुअल केस में तो लेस देन वन है। ग्रेटर देन वन तो वो है ही नहीं, है ही नहीं, किसी हालत में है ही नहीं। हालांकि कुछ मशीन्स जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वैसे पुलिस, जिसमें तुम्हें कम एफर्ट लगाना है और ज्यादा लोड को हम उठा सकते हैं। उस केस में एफर्ट कम, लोड ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगा। लेकिन सिंगल फिक्स्ड पुली में नहीं, आगे हम ब्लॉक एंड टैकल करेंगे उसमें, तो उस केसेस में वो पुली फोर्स मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, यहां पर हमें पूछा जा रहा है सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसे आइडियल बना देते हैं। एन आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड एज, ठीक है, एन आइडियल सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड एज। इसे ऐसा बना दिया चिल्ड्रन, क्वेश्चन को इस वर्ड को डाल दिया आइडियल। आइडियल केस में फोर्स मल्टीप्लायर वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन वन नहीं है, लेस देन वन भी नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू इक्वल टू वन है। स्पीड मल्टीप्लायर भी वो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लायर तब होगा जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन वन हो, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी लेस देन वन हो। लेकिन ऐसा वो नहीं है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू वन होती है एंड मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी वन है आइडियल केस में। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या क्यों यूज करते हैं भाई? ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना तो स्पीड मल्टीप्लायर है, यूज क्यों करेंगे? यूज करते हैं एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर ये पुली नहीं रहता तो इस भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मुझे एफर्ट ऊपर लगाना पड़ता। अगर पुली नहीं होता तो इस लोड को उठाना है, ऊपर हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे ऊपर खींचना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन नीचे खींचना कितना इजी है। तो एफर्ट के डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हमने इसे यूज किया। सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज होता है नाइदर एज अ फोर्स मल्टीप्लायर नॉर एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, बट एज अ डिवाइस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन लिख लो, वाई इज अ सिंगल फिक्स्ड पुली यूज्ड? अभी अभी हमने देखा it is used, a single fixed pulley is used, कहां यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? is used, लिखेंगे नहीं, is used as a force multiplier, गलती से भी नहीं। used as a speed multiplier, गलती से भी नहीं। is used as a machine या फिर is used as a device, फिर आगे लिख दो यही लाइन को, to change the direction of effort to a convenient direction। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पुली हम करने वाले हैं वो है सिंगल मूवेबल पुली। मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, आई होप तुम्हें क्लियर है। छोटी छोटी एंड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने देख लिया कि सिंगल फिक्स्ड पुली में आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है और एक्चुअल केस में लेस देन वन होता है। वेलोसिटी रेशियो आइडियल केस में भी वन होता है एंड एक्चुअल केस में भी वन होता है। अब एक कंक्लूजन हम निकालेंगे इन दोनों पुलिस को पढ़ने के बाद। अभी हम सिंगल मूवेबल पुली पढ़ते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम बात करेंगे। सिंगल मूवेबल पुली क्या है? इसका जो व्हील है वो मूवेबल है। मूवेबल मतलब व्हील पूरा ऊपर नीचे जाएगा। इस केस में तो व्हील वाज फिक्स्ड ना, व्हील को हम ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहे थे, व्हील बस अपने एक्सेल पर रोटेट कर रहा था। लेकिन यहां पर मूवेबल में ये पूरा व्हील ही रोटेट, व्हील ऊपर नीचे जाएगा। कुछ इस तरह का है, ये जो स्ट्रिंग हमने ऐसे ग्रूव से करके ऊपर कर दिया, तो थोड़ा नीट एंड टाइडी बनाते हैं, ऊपर कर दिया। ठीक है, यहां पर एफर्ट ऊपर लगाया जाता है। सिंगल मूवेबल पुली में लेकिन एफर्ट ऊपर लगता है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन था सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज हम कहां करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ मशीन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली। लेकिन सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट यूज्ड एज अ डिवाइस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये बेसिकली एक फोर्स मल्टीप्लायर है, तुम लोग खुद देखना कैसे। अब यहां पर इसे हम ड्रॉइंग पूरा कंप्लीट करते हैं, इसका डायग्राम, उसके बाद में समझाता हूं। यहाँ हुक है, यहां पर हमने लटका दिया एक लोड।
अब देखो ये लोड को बैलेंस कर रहा है दो स्ट्रैंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, टू स्ट्रैंड्स ऑफ द स्ट्रिंग. इस लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स. This load is being balanced by two strands of the string. One strand is this strand, जिसको मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया. दूसरा स्ट्रैंड इज दिस स्ट्रैंड. दैट मींस दोनों स्ट्रैंड में टेंशन है एंड दो टेंशन मिलकर इस लोड को बैलेंस किया हुआ है. दोनों स्ट्रैंड्स में टेंशन होगा. टेंशन का मतलब देखोगे कि दोनों स्ट्रैंड्स एकदम स्ट्रेच्ड है, एकदम खींचा हुआ है, स्ट्रेच्ड. और टेंशन दोनों स्ट्रैंड में है, ऊपर लग रहा है. यानी ये जो लोड है, ये लोड दो टेंशंस पर बैलेंस किया हुआ है. दिस लोड इज बीइंग बैलेंस्ड बाय टू स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड, यानी टू टेंशंस. बट दिस एफर्ट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय जस्ट वन स्ट्रैंड. ये एफर्ट सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पर बैलेंस्ड है. तो यहां पर हम एफर्ट के लिए अगर टेंशन बनाए तो एक ही टेंशन एफर्ट को बैलेंस है. इस पार्ट को अगर हम देखें सिर्फ इस ब्लू बॉक्स के अंदर, तो इस एफर्ट को किसने बैलेंस किया है? इस एक टेंशन ने, वन टेंशन. The effort is being balanced by just one tension in this case. Don't think that this tension is balancing the effort. No, this tension and this tension we have considered to balance the load. अब इन दोनों टेंशन को भूल जाओ, इनको भूल जाओ. अब हम सिर्फ एफर्ट की बात कर रहे हैं. एफर्ट की बात कर रहे हैं तो एफर्ट का डायरेक्शन ऊपर, तो जो टेंशन नीचे लग रहा है वो एक ही स्ट्रैंड है, नीचे लग रहा है. तो एक टेंशन एफर्ट को बैलेंस कर रहा है. मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला वही बोरिंग सा फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट. ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने यहीं पे देखा था, लोड अपॉन एफर्ट. तो लोड के जगह क्या लिखेंगे? 2t. मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे लोड है, लोड इज 2t, एफर्ट इज जस्ट t. टी कट गया. मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, यानी 2 आ गया. मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, ग्रेटर देन 1 है, होता है मशीन में. मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमने अभी अभी पीछे लिखा था क्या? फोर्स मल्टीप्लायर है. हालांकि ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, आइडियल सिंगल मूवेबल पुली, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है. वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? अब हम वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे. वेलोसिटी रेशियो यानी वीआर की बात करेंगे. वीआर का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. वही फॉर्मूला जो हमने यहां लिखा है, वेलोसिटी रेशियो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितना ज्यादा एफर्ट मूव करेगा, एफर्ट आर्म ऊपर मूव करेगा, उसका आधा लोड आर्म मूव करेगा, लोड उसके हाफ मूव करेगा. यस, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. ये एक्सपेरिमेंट से तुम अगर खुद ऐसा पुली बना सको, ओके, तुम्हारे पास अगर उस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं कि छोटा सा एक पुली का मॉडल ऐसा सेम टू सेम बना सको, और तुम खुद मेजर करके देख सकते हो कि इस पॉइंट से पॉइंट ए को अगर खींचकर मैं यहां पर लेकर आ गया इस एफर्ट आर्म को, यानी इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूं 4 सेंटीमीटर ऊपर, एफर्ट आर्म को 4 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये जो लोड है ना, ये बॉक्स ये ऊपर चला गया व्हील के साथ, ये व्हील के साथ ये ऊपर चला गया. तो ये लोड आर्म कितना डिस्प्लेस किया चिल्ड्रन? ये मैं मेजर करके देखूंगा कि 2 सेंटीमीटर करेगा. यानी एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट का आधा करता है लोड का डिस्प्लेसमेंट. कौन से पुली में? सिंगल मूवेबल पुली में, सिंगल फिक्स्ड पुली में नहीं. सिंगल फिक्स्ड पुली में तो हमने देखा दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम था, जितना लोड डिस्प्लेस हुआ उतना एफर्ट डिस्प्लेस किया गया था. लेकिन यहां पर जितना एफर्ट डिस्प्लेस हुआ उसका आधा लोड डिस्प्लेस होता है. यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अगर x है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड x का आधा होगा, यानी x कट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, वेलोसिटी रेशियो 2 आ जाएगा. और आइडियल केस में दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि आइडियल कोई भी मशीन हो, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है. यहां पर भी वो चीज वैलिड है, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज दोनों ही 2 है, क्योंकि हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं. लेकिन प्रैक्टिकल केस की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू लेस देन 2 होगा प्रैक्टिकल केस में. आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 2 होगा आइडियल केस में. लेकिन वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू मैंने जैसे पिछले केस में एक्सप्लेन किया था कि चाहे तुम आइडियल मान लो या एक्चुअल लो, जिसमें फ्रिक्शन वगैरह सब हो, उसमें भी velocity ratio का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है. So velocity ratio will be 2 even for an ideal single movable pulley or for an actual one.
दोनों के लिए वेलोसिटी रेशियो 2 है। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि वेलोसिटी रेशियो एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मशीन, फॉर अ गिवन पुली। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू एफिशिएंसी से चेंज नहीं होता कि हमारा मशीन 100% एफिशिएंट हो गया तो वेलोसिटी रेशियो चेंज हो जाएगा, अगर एफिशिएंसी कम हो गया तो वेलोसिटी रेशियो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। चाहे आइडियल मशीन हो, एफिशिएंसी 100% हो, या एक्चुअल मशीन हो, एफिशिएंसी 80% हो, 60% हो, 70% हो, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी रेशियो डज नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डिपेंड ऑन, यही कंक्लूजन की मैं बात कर रहा था कि दोनों पुलिस को पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन करने वाले हैं, यही चीज कि वेलोसिटी रेशियो दोनों पुलिस में हमने देखा कि वेलोसिटी रेशियो आइडियल हो या एक्चुअल हो, आइडियल में एफिशिएंसी 100% होता है, एक्चुअल में एफिशिएंसी 100% से कम होता है। चाहे जैसा भी एफिशिएंसी हो, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पुली सिस्टम। सो वेलोसिटी रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन एफिशिएंसी। ओके, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। यहां पर देखो एफिशिएंसी 100% था आइडियल केस में, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 था। एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो गया, लेस देन 1 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो गया। एक्चुअल मशीन में 100% से कम होता है ना एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम हो गया। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है जो शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला काफी चीजें बता रहा है। अभी अभी हमने डिसाइड पढ़ा लिया कि वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट हम को हटा देंगे तो इक्वालिटी को हटाकर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल सकते हैं, और ये बात बिल्कुल वैलिड है। एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी डिक्रीज करेगा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पुली सिस्टम, फॉर अ गिवन मशीन। सिंपल है। इसका यूज कहां करते हैं? यूज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली, बड़ा सिंपल है। क्या इसे हम यूज करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर की तरह? जी हाँ, एमसीक्यू की तरह आ सकता है। ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है। एन आइडियल सिंगल मूवेबल पुली इज यूज्ड एज, या फिर सिंपली अ सिंगल मूवेबल पुली इज यूज्ड एज। अगर मूवेबल पुली बोलेगा तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा ही होगा हमेशा, इसलिए वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। उस केस में फोर्स मल्टीप्लायर को टिक करना। तो एक क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो, खुद बना सकते हो कि single movable pulley is used as option A force multiplier, option B speed multiplier, option C a device to change the direction of effort to convenient direction, option D none of the above। तो फोर्स मल्टीप्लायर पे टिक करना। सिंगल मूवेबल पुली की बात कर रहा हूं, फोर्स मल्टीप्लायर। देख रहे हो कितने पॉसिबल एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम खुद अब एमसीक्यूज बना सकते हो। इस तरह से अगर पढ़ाई करो कि कॉन्सेप्ट पढ़ के खुद क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किया जा सकता है, वो अगर सोच पाओ तभी तो मजा है। यूज ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब हमने देख लिया कुछ, चलो देख, हमने तो ऑलरेडी डिफरेंस पढ़ लिया दोनों पुलिस का, अब जस्ट पेन डाउन कर लेते हैं। अगर हम सिंगल मूवेबल पुली, हमें कहा जाए सिंगल मूवेबल पुली और सिंगल फिक्स्ड पुली के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बोले, लेट अस राइट द फिक्स्ड पुली फर्स्ट। सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस लिखने को कहा जाए तो क्या हम लिख सकेंगे? हमें लिख लिख पाएंगे, बिल्कुल। सिंगल फिक्स्ड पुली में आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, अभी अभी पढ़ा। सिंगल मूवेबल पुली में आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। सिंगल फिक्स्ड पुली में वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, सिंगल मूवेबल पुली में वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। देखो यहां हम आइडियल वेलोसिटी रेशियो या फिर यहां पे भी मैंने आइडियल वेलोसिटी रेशियो नहीं लिखा, क्योंकि आइडियल या एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी रेशियो चाहे आइडियल मशीन हो चाहे एक्चुअल मशीन हो, वो सेम होगा फॉर अ गिवन पुली। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज के केस में आइडियल लिखा है, क्योंकि आइडियल नहीं होगा तो फिर इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ये 1 से कम हो जाएगा और इसका वैल्यू 2 से कम हो जाएगा। क्लियर? इसलिए यहां आइडियल लिखा। थर्ड, इसका यूज करते हैं, यूज्ड एज अ डिवाइस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट
डायरेक्शन। इसका यूज कहां करते हैं? यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। आई होप आज जो हमने सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली पर क्वेश्चंस किए हैं तुम्हें काफी पसंद आए हैं, काफी यूजफुल होंगे तुम्हारे लिए, हमारे प्रिपरेशन के लिए। गॉड ब्लेस यू। टू सपोर्ट मी, प्लीज share the video with your friends, subscribe the channel if you haven't done so, and please like the video. Thank you all of you. God bless you. Take care.